Hello kids, how are you all? I hope you all are fine at your home. This is your English teacher here, Jyoti ma'am. So as you all know, हमने पिछले वीक कौन सा टॉपिक कवर किया है? ग्रामर का एडजेक्टिव्स. एंड विद योर रिस्पॉन्स आई एम श्योर कि अब आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है, बट यू हैव टू बी इन टच विद इट ताकि आप भूलो ना. ओके, सो दिस वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ रीडर्स नेक्स्ट चैप्टर. आपकी रीडर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स सी कितने चैप्टर्स हो गए एंड नाउ विच इज़ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, so here goes the list. हमारा हो चुका है रेन इन समर, चैप्टर नंबर 2 सैंडी लर्न्स अ लेसन, चैप्टर नंबर 3 द ट्रोजन हॉर्स, चैप्टर नंबर 6 टिट फॉर टैट. आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ रिकी टिकी. ठीक है, व्हाट इज़ इट? रिकी टिकी. सो विल डू दिस चैप्टर नंबर 8. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, तो ये है आपका चैप्टर रिकी टिकी. ओके, लेट्स स्टार्ट इस. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. ओके, फर्स्ट मैं सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करूँगी. आप क्लियरली सुनेंगे कैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, कहाँ पॉजेस है, किस वर्ड को मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये सब आपको देखना है. उसके बाद आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. रिकी टिकी वॉज अ mongoose. He had a cat-like body and a weasel-like head. His eyes and the end of his restless nose were pink. He could scratch himself anywhere he pleased with any leg, front or hind, whichever he chose to use. His war cry as he scuttled through the long grass was Rikki Tikki 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 Tick. Nothing frightened him. Actually, it is the hardest thing in the world to frighten a mongoose because he is filled with curiosity. The motto of all the mongooses is run and find out, and Rikki Tikki was a true mongoose. Rikki Tikki had just started living with a family as their pet and loved playing in their garden. One day, when he was in the garden, he heard sorrowful voices in a bush. It was Darzi, the tailor bird, and his wife. "What is the matter?" asked Rikki Tikki. "We are very miserable," said Darzi. "Our baby fell out of our nest and Nag ate him." "That is very sad," said Rikki Tikki. "But I am new here. Who is Nag?" Suddenly, from the thick grass at the foot of the brush, there came a low hiss. Then, out of the grass rose up the spread hood of Nag, the big black cobra. He was 5 feet long from tongue to tail. He looked at Rikki Tikki with wicked snake's eyes. "I am Nag. Look and be afraid." Rikki Tikki was afraid for a minute. But it is impossible for a mongoose to stay frightened for long. He had never met a live cobra before. But he knew that a grown mongoose business in life was to fight and eat snakes. Nag knew that too, and in his heart he was afraid. "Well," said Rikki Tikki, "do you think it is right for you to eat fledglings out of a nest?" Nag knew that mongoose in the garden meant death for him and his family, but he wanted to throw Rikki Tikki off his guard. So he dropped his head a little. "You eat eggs," he said. "Why should not I eat birds?" "Look behind you," sang Darzi. Rikki Tikki knew better than to waste time in staring. He jumped up high in the air, and just under him whizzed by the head of Nagin, Nag's wicked wife. She had crept up behind him as he was talking to kill him. He heard her savage hiss as the stroke missed. He came down almost across her back, and if he had been an old mongoose, he would have known that this was the time to break her back with one bite. He bit indeed, but did not bite long enough and jumped away, leaving Nagin angry. "Wicked Darzi," said Nag, lashing up at the nest.
but it was out of his reach. Rikki Tikki felt his eyes growing red and hot. When a mongoose eyes grow red, it means he is angry, and he looked all around, but Nag and Nagin has disappeared into the grass. Okay kids, so ये थी चैप्टर की रीडिंग. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर. आपको सेम ऐसी रीडिंग करनी है जैसे मैंने की है, जैसे कि वेल सेड रिकी टिकी, डू यू थिंक इट इज़ राइट फॉर यू टू ईट फ्लेजिंग्स आउट ऑफ ए नेस्ट. ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह, एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेशन की तरह, ऐसे एक लाइन में रीडिंग नहीं करनी. ठीक है, इसलिए मैंने आज पहले चैप्टर की रीडिंग की है ताकि आप लोगों को हेल्प हो रीडिंग में. अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन क्लास से पहले, फिर यू विल रीड इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. ओके किड्स, नाउ आई एक्सप्लेन यू द चैप्टर. ठीक है, रिकी टिकी वॉज अ मॉन्गूज. मॉन्गूज क्या होता है? नेवला. कभी आप लोगों ने देखा है? मॉन्गूज जो होते हैं वो स्नेक्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं. मॉन्गूज और स्नेक्स एनिमीज़ कहलाते हैं. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं और हमेशा एक दूसरे को मारना चाहते हैं. ठीक है, दैट्स अ रियल थिंग. तो रिकी टिकी क्या था? एक मॉन्गूज था, नेवला था. ही हैड अ कैट लाइक बॉडी. कैट लाइक जैसी उसकी कैट की जैसी बॉडी थी, और वीजल लाइक हेड. वीजल भी इनके जैसे एनिमल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे, आपने कभी देखे हो, चुभने वाले दाने जैसे होते हैं, उनको वीजल कहते हैं. ठीक है, तो उसके जैसे इसका हेड था. हिज आइज एंड द एंड ऑफ हिज रेस्टलेस नोज वर पिंक. उसकी आइज़ और उसके नोज़ का जो एंड वाला हिस्सा था ना, वो पिंक था. ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ एनीवेयर ही प्लीज्ड विद एनी लेग, फ्रंट और हाइंड. वो इतना फ्लेक्सिबल था कि वो कहीं भी, मतलब खुद को स्क्रैच करना है, खुजलाना है खुद को, तो फ्रंट लेग्स, बैक वाले लेग्स कोई भी यूज़ कर सकता था, विच एवर ही चूज़. हिज वॉर क्राई एज ही स्कटल्ड थ्रू द लॉन्ग ग्रास वॉज, मतलब जब भी वो कहीं भागता था लॉन्ग ग्रास में से, कहीं भी पास ऑन होता था, तो उसकी आवाज़ कैसी होती थी? रिक टिक टिकी टिक टिक. ठीक है, क्योंकि रिकी टिक्स जो मॉन्गूज होते हैं उनकी वॉइस ऐसी शार्पन्ड अप होती है. नथिंग फ्राइटन हिम, मतलब उसको किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता था. एक्चुअली इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू फ्राइटन अ मॉन्गूस. ये रियल फैक्ट है. जो नेवले होते हैं ना, वो किसी चीज़ से नहीं डरते. क्यों? क्योंकि वो फील्ड ऑफ क्यूरियोसिटी होते हैं. क्यूरियोसिटी क्या होती है? कुछ जानने की इच्छा. आपकी क्यूरियोसिटी होती है, मतलब आपको हमेशा जानना है कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ. आपको कभी आराम नहीं मिलता है उन सवालों के जवाब पाए हुए, वो उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं. ठीक है, तो मॉन्गूस ऐसा एनिमल होता है जो फुल ऑन क्यूरियोसिटी से भरा होता है. उसको हर चीज़ जाननी होती है, तो वो किसी चीज़ से डरता नहीं है. द मोटो, मतलब उसका जीने का मकसद जो है वो ये है कि मॉन्गूस जो हैं रन एंड फाइंड आउट करते हैं. वो कहीं भी पहुंच के कुछ भी पता लगाने की कोशिश करते हैं. और रिकी टिकी जो है वो एक ट्रू मॉन्गूस था. मतलब अपनी जो उसकी फितरत होती है, जो भी, वो उन सब पे वैसे ही उसके सारे फीचर्स थे, इसलिए वो एक ट्रू मॉन्गूस था. रिकी टिकी हैज़ जस्ट स्टार्टेड लिविंग विद द फैमिली एज देयर पेट. वो एक फैमिली के साथ उनका पेट बन के रह रहा था और उसको गार्डन में खेलना बहुत पसंद था. वन डे व्हेन ही वॉज इन द गार्डन, एक दिन जब वो गार्डन में था, उसने क्या सुना? किसी के रोने की आवाज़ सुनी झाड़ियों में से. कौन था वो? वो डार्जी थी, द टेलर बर्ड. टेलर बर्ड मतलब एक तरह की बर्ड, और उसकी वाइफ, वो दोनों रो रहे थे. तो उसने पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? वी आर वेरी मिजरेबल. उसने बोला, हम बहुत बुरी हालत में हैं. हमारा बेबी जो है हमारे नेस्ट से गिर के नीचे गिर गया था, और उसे किसने खा लिया? नाग ने. ठीक है, दैट इज़ वेरी सैड. रिकी टिकी ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ. अब मैं यहाँ पे हूँ, अब आप मुझे बताओ कि ये नाग कौन है? हु इज़ नाग? सडनली, अचानक क्या हुआ? थिक ग्रास जो थी ना पीछे, ये जो भारी वाली इनकी ग्रास थी, इसके पीछे से, झाड़ियों में से एक हिस सुनाई दी. हिस किस लिए यूज़ होती है? स्नेक्स के लिए यूज़ होती है. स्नेक्स की वॉइस को क्या बोलते हैं? हिस. ठीक है, देयर केम अ लो हिस, मतलब आवाज़ आई उसे, ऐसी वाली स्नेक की आती है ना. देन आउट ऑफ द ग्रास रोज अप द स्प्रेड हुड ऑफ नाग. ग्रास में से क्या निकला? नाग ने अपना हेड निकाला. ठीक है, फन होता है ना, जैसे ये शेप होता है ना, इसको बोलते हैं हुड. ठीक है, द बिग ब्लैक कोबरा. कौन सा स्नेक था? बिग ब्लैक कोबरा. ही वॉज 5 feet लॉन्ग. कितनी फीट लॉन्ग था? 5 feet फ्रॉम टंग टू टेल. ही लुक्ड एट रिकी टिकी विद विकेड स्नेक्स आइज. उसने डराते हुए रिकी टिकी को देखा. उसने बोला, आई एम नाग, मैं हूँ नाग, मुझे देखो और डरो. रिकी टिकी 1 मिनट के लिए तो डर गया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था ना, मॉन्गूस किसी से नहीं डरते हैं. इम्पॉसिबल है मॉन्गूस का ज़्यादा देर तक डर के रहना. उसने कभी लाइव कोबरा नहीं देखा था, इसलिए वो एक बार के लिए डर गया था, है ना. पर उसको पता था कि मॉन्गूस का तो काम ही यही होता है कि हमेशा स्नेक से लड़े और उसे खा जाए.
है ना। और नाग भी ये बात जानता था, दिल ही दिल में वो भी डरा हुआ था कि यहाँ पे एक नेवले का होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। फिर उसने कहा रिकी टिकी ने क्या किया, क्या ये सही है किसी के बच्चों को उसके नेस्ट में से खा जाना? नाग जानता था कि अगर इस गार्डन में नेवला रहेगा तो उसकी जान को खतरा है, उसकी फैमिली को जान को खतरा है। तो वो रिकी टिकी को यहाँ से जल्द भगाना चाहता था, है ना। तो उसने अपना हेड थोड़ा सा झुकाया, मतलब उसके दिमाग में कुछ प्लान था। उसने क्या कहा, तुम भी तो एग्स खाते हो ना, मैं क्यों ना बर्ड्स को खाऊं। तभी डार्जी जो ऊपर बैठी थी उसने क्या चिल्लाया, जल्दी से अपने पीछे देखो। रिकी टिकी समझ गया कि पीछे कुछ है और अगर वो पीछे पलटने में टाइम वेस्ट करेगा तब तक वो मारा जा चुका होगा। तो उसने पीछे पलटने की बजाय क्या किया, बेटर टू वेस्ट टाइम देखने की बजाय ही जम्प्ड अप हाई इन द एयर। वो जल्दी से ज़मीन से ऊपर कूदा एंड जस्ट अंडर हिज, जैसे ही वो ऊपर कूदा उसके नीचे से एक नागिन का फन निकला। नाग की विकेट वाइफ थी वो, है ना, नाग की बुरी वाली पत्नी। वो पीछे से आई थी जब वो बात कर रहा था डार्जी नाग से, ताकि वो उसको मार सके। उसको पीछे से उसकी हिस सुनाई दे गई थी, हर्ड हर सैवेज हिस एज द स्ट्रोक मिस्ड। ठीक है, जैसे ही मतलब उसको उसने वो नीचे आई और वो जंप करके भाग गया ना, तो उस नागिन का जो स्ट्रोक था वो मिस हो गया, वरना वो उसे खा जाती। तो इसलिए उसने बहुत ही बुरी आवाज़ निकाली, ऐसी वाली, है ना। ही केम डाउन ऑलमोस्ट अक्रॉस हर बैक। उसको क्रॉस करके जंप किया ना उसने, तो क्रॉस करके उसके बैक पे आया। अगर इसकी जगह कोई एक्सपीरियंस्ड होता ना, ये तो छोटा था ना, कोई बड़ा मंगूस होता जिसको तजुर्बा होता उम्र का, तो वो ये मौका नहीं छोड़ता, उसके पीछे आके वो उसका बैक जो है, पीठ एक बाइट में काट डालता। पर क्योंकि ये छोटा था ना, तो इसने कोशिश की बाइट करने की, पर वो इतने अच्छे से बाइट नहीं कर पाया। पर उसने थोड़ा सा उसको बाइट किया, जिससे नागिन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा। विकेट डार्जी सेड नाग लैशिंग अबाउट द नेस्ट। तो नाग को तो गुस्सा आ ही गया था कि नागिन के स्ट्रोक से भी बच गया। तो उसने क्या बोला, डार्जी को उसने गुस्सा करते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। और उसका जो नेस्ट था ना, घोंसला, उसके ऊपर कूदने की कोशिश की, पर वो उसकी पहुंच से बहुत ऊपर था, तो वो कुछ नहीं कर पाया उसको, है ना। रिकी टिकी ने देखा ये सब, तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई, है ना। जब भी मंगूस की आंखें लाल होती इसका मतलब वो बहुत एंग्री है। जब उसने आसपास देखा तो नाग और नागिन जो है वो घास में गायब हो चुके थे, है ना। मतलब आज तो वो बच गए, बट आगे से अब वो कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि मंगूस बहुत ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टोरी रिकी टिकी की, है ना। तो अब आपका आज का वर्क है, ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करोगे। मैं आपको आज ये रीडिंग दूंगी और हम ऑनलाइन क्लास में इसकी रीडिंग करेंगे। उससे पहले मेरी रीडिंग आपको सुननी है, सारे वर्ड्स अच्छे से बोलने, प्रोनाउंस करने सीखने हैं, पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। उसके बाद हम क्लास में रीडिंग करेंगे और मैं आपको आज वर्ड मीनिंग्स भी भेजूंगी जो आपको लर्न करने हैं और राइट करने हैं, ओके। थैंक यू किड्स, टेक केयर।